اب باضابطہ جلسے کی کارروائی ہم آگے بڑھا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں وقت کی پابندی کرنا ہے بڑی شدت کے ساتھ۔ پرمیشن بہت کم ٹائم کا ہے، اس لیے ہم وقت پر جلسے کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہماری اسٹیج پر محقق دوران فقیہ عصر مفکر اسلام حضرت علامہ و مولانا الحاج مفتی نیجر اعظم اشرفی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و دامہ ظلہ النورانی تشریف فرما ہے۔ جتنے علماء مدرسے میں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ لوگ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، کیونکہ آپ آئے ہیں مدرسے میں بیٹھنے کے لیے نہیں، اسٹیج کی زینت بننے کے لیے۔ وقت پر اور وقت کی پابندی کے ساتھ جلسے کو آگے بڑھانا ہمارے لیے مفید ہوگا، اسی لیے ہم حضرت کو دعوت دیتے ہیں پہلے خطاب کے لیے۔ حضرت آئیں گے اور آپ کو بالکل نئے نرالے انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ سے گزارش کروں گا ادھر ادھر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ وہ لوگ دائز پر آئیں، اسٹیج پر آئیں، تاکہ جلسے کی کامیابی کی ضمانت ہو سکے آپ کی تشریف آوری اور آپ کی شرکت۔ آئیے ہم حضرت کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت کا تعارف پورے حیدرآباد میں تقریباً لوگ جانتے پہچانتے ہیں کہ حضرت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، علمی شخصیت ہیں، جن کی قدر کرنا، جن کی عزت کرنا یہ ہمارا دینی فریضہ، ملی فریضہ اور طبیعت کا تقاضا ہے۔ ہم حضرت کو دعوت دیتے ہیں کہ شیخ کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رنگ ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جانے لطف امیم آتا ہے، اہل محفل کو شادماں کرنے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ آؤ ہم ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر سے، آؤ ہم ان کا استقبال کریں نعرہ تکبیر سے، کیونکہ باطل لرزہ بردام ہے اسی شمشیر سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مذہب اہل سنت، مذہب اہل سنت، مفتی نیجر اعظم اشرفی صاحب قبلہ، مفتی نیجر اعظم اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اب آپ کے سامنے حضرت والا مفتی نیجر اعظم صاحب قبلہ مدد نحمده ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اس صدی میں تیرے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیر، ہنسنے والوں تیرا پتھر سا کلیجہ ہوگا۔ خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے جامعہ طیبۃ الرضا کا یہ عظیم الشان بنام طیبۃ الرضا کانفرنس 22واں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں سے بزرگان دین
اور سلف صالحین، اولیاء کاملین، اسلاف امت کی روحانیت کے طفیل رواں دوا ہے، ارتقاء و عروج کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ خدائے وحدہ لا شریک سے صبح و شام زندگی کی ترقی کی ان کی گہرائیوں سے دعا ہے۔ ان کے تمام ذمہ داران کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اخلاص و للہیت کے ساتھ خدمات دینیہ کی دائمی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مدرسہ کا جلسہ ہے، وہ مدرسہ جو آپ کے تعاون سے چلتا ہے۔ یہ محض روایتی جلسہ نہیں ہے بلکہ درایتی جلسہ بھی ہے۔ یہ فکر و فن کا جلسہ ہے، علم کے بانٹنے کا جلسہ ہے، اشاعت دین کا جلسہ ہے، فروغ اسلام کا جلسہ ہے، اور اسلام کی جو ریئلٹی ہے، مسلمانوں کی جو سچی شباہت ہے، اہل ایمان کی جو پہچان ہے، قرآن کی جو اصل ہے، صاحب قرآن کی جو صداقت ہے، اسلاف امت کی جو قربانیاں ہیں، بزرگان دین کی جو جانثاریاں ہیں، کربلا والوں کی محنت شاقہ اور شہادت کی جو بے مثال عظیم عنوان لیے ہوئے، اور امت کے تمام ذمہ داران اسلام کی صبح و شام کی محنتیں، ان سب کو اگر یکجا کر دیا جائے تو یہ مدرسے اور یہ جامعہ کا آج کی تاریخ میں ایک عنوان ملتا ہے۔ مسلمانوں، ہم اپنی شکستہ حالی کی شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے قرآن سے، تعلیمات قرآن سے، اپنے اس اللہ سے جس کا انٹروڈکشن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، اس اللہ کا تعارف اور اس کی تعریف اور اس کی معرفت و پہچان اس قرآن سے جو دنیا کے رائٹروں نے نہیں لکھا بلکہ وہ آسمان کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، مخلوق نے نہیں لکھا، اللہ پاک نے حبیب پر اس قرآن کو اتارا ہے۔ اس قرآن کو سمجھیں، اس قرآن کو پڑھیں۔ لائبریریوں میں یا پبلشنگ کرنے والے پبلشر کے یہاں سے خریدنے والے قرآن، تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ قرآن آسان ہے؟ یہ قرآن محض جزو دان کے لیے نہیں، یہ قرآن بڑا عظیم ہے۔ یہ قرآن اللہ کا محبوب کلام ہے۔ توریت بھی خدا کا کلام ہے، انجیل بھی خدا کا کلام ہے، زبور بھی خدا کا کلام ہے، ابراہیم و موسیٰ پر اترے ہوئے صحیفے بھی خدا کے ہی کلام ہیں۔ لیکن پیارے، یاد رکھو، اس امت کو، بالخصوص اہل ایمان کو اور پوری دنیا کے لیے، جو قرآن اللہ پاک نے، کتاب اللہ پاک نے، کلام اللہ پاک نے پیش فرمائی یا دیا ہے، اسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یہ صرف کلام ہونے کی حیثیت سے آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ یہ محبوب کلام کی حیثیت سے ہے، یہ محبوب ترین کلام کی حیثیت سے ہے۔ اگر کلام کی حیثیت ہوتی تو توریت رکھ دیتا اللہ خدا کا کلام ہے،
زبور رکھ دیتا اللہ خدا کا کلام ہے، انجیل رکھ دیتا خدا کا کلام ہے۔ خدا اپنے کلام کو صرف پرموٹ کرنا مقصود ہوتا تو زبور و انجیل بھی تو اسی کا کلام ہے، توریت بھی تو اسی کا کلام ہے۔ کلام کی حیثیت سے قرآن کی تلاوت یا قرآن کا فہم نہیں، اللہ کے اس کلام کی حیثیت سے اسے پڑھو جس کلام کو اللہ نے اپنا محبوب اور اپنے محبوب پر اتارا ہے۔ اس نیت سے پڑھو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کلام کی تمہیں برکتیں عطا کرے گا۔ اے انسان، آج کلام الہی کے تم حافظ نہیں، آج کلام الہی کے حافظ نہیں ہو، قرآن مجید کے حافظ ہو۔ کلام الہی توریت بھی ہے لیکن ایک آیت بھی تمہیں یاد نہیں، زبور بھی ہے ایک آیت بھی تمہیں یاد نہیں۔ اللہ کا کلام تم نے حفظ نہیں کیا ہے، قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اس قرآن کی عظمت کو سمجھو کہ اگر یہ قرآن پہاڑ جیسی طاقتور تمام کے نزدیک متفقہ چیز پر اگر اتار دیا جاتا تو خشیت الہی کی تاب نہ لا کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہمارا 16 سال کا بچہ اپنے سینے میں اسے جگہ دے دیا ہے، ہمارے 20 سال کے بچے اسے سینے میں جگہ دے دیے ہیں۔ کیا بات ہے، یہ ان کی محنت نہیں ہے، محبوب خدا کے محبوب کلام کی برکت ہے کہ تمہیں سینے میں اللہ پاک نے جگہ دے دیا ہے، تمہیں سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ تم ذاکر قرآن نہیں ہو، تم حافظ قرآن ہو۔ قرآن کو یاد کرنے والے نہیں، تم قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یاد کرنے والے ہوتے تو ذاکر کہا جاتا تمہیں۔ ذکر بولتے ہیں یاد کرنے کو، حفظ بولتے ہیں حفاظت کرنے کو۔ حافظ قرآن ہو، کیا سمجھتے ہو تم سال میں تم تراویح پڑھاؤ گے اسی لیے حافظ بنے ہو؟ نہیں، تم حافظ بنے ہو تمہاری دنیا روشن ہوگی، تم حافظ بنے ہو تمہارے ماں باپ کے سروں پر تاج ایسا پہنایا جائے گا کہ اہلیان محشر عش کریں گے، اہلیان محشر خوش ہو جائیں گے، اور سورج کی چمک سے بھی زیادہ ان کے سر کا وہ تاج چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس نیت سے تم حافظ قرآن ہو، تم حافظ قرآن ہو، ساری دنیا تمہارا ساتھی ہونا چھوڑ دے گی، اچھے سے اچھے، پیارے سے پیارے، محبوب سے محبوب ترین شخصیتیں تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، لیکن آؤ وہ قرآن تمہارا ساتھ اس وقت نہیں چھوڑے گا جب سب چھوڑ دیں گے۔ قبر میں وہ نور بنے گا، برزخی دنیا میں انوار و تجلیات کی آماج گاہ بنے گا، حشر کی دنیا میں ہولناکیوں سے بچانے والا وہ نور بنے گا۔ اس لیے تم حافظ قرآن بنے ہو، اس لیے اے حافظ قرآن کبھی گڈھوں پر بیٹھ کر گپے نہ لگانا، اے حافظ قرآن اس پر عمل کرنا، اے حافظ قرآن کی مائیں کبھی اپنے بیٹوں کو گالیاں مت دینا، اے حافظ قرآن کے باپ کبھی اپنے بیٹوں کو بے عزتی کی دنیا میں نہ دیکھنا، ان کی عزت کرنا، اس لیے کہ وہ قرآن ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اگر سینے میں صرف سورہ یاسین ہو تو طوبیٰ لألسنۃ فیہا سورۃ یاسین، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس پیٹ کے لیے مبارکبادی دیتے ہیں مصطفیٰ جس پیٹ میں صرف سورہ یاسین ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ محسوس کر اس حافظ قرآن کے پورے وجود کا، محسوس کر اس حافظ قرآن کی پوری حرکتوں کا، محسوس کر اس حافظ قرآن کی عظمتوں کا جو بارگاہ خدا بندی میں صرف سورہ یاسین لے کر کے نہیں، پورا قرآن لے کر کے ہے، پورے قرآن لے کر کے ہے۔ اللہ اللہ، آج آپ جائیں دوسری قوموں میں بات تو بڑی ہوتی ہے کہ ہم اس کو ماننے والے، اس کو ماننے والے، لیکن مکمل کوئی اپنی کتاب کا حافظ نظر نہیں آتا ہے۔ یہ قرآن کی سچائی ہے، اسلام کی عظمت ہے، وقار اسلام ہے، عزت اسلام ہے۔ ایمان والوں کو یہ خدا کی بارگاہ سے بہت بڑا تحفہ ہے کہ یہ قرآن، سوچ لو، یہ قرآن اور دینوں والا قرآن یا کتاب نہیں ہے، اور دین والے دعویٰ کرتے ہیں صرف، لیکن حافظ دین نہیں ہے، یہ دعویٰ کرتے ہیں حافظ نظر آتے ہیں۔ اس میں دیکھیے الحمد سے لے کے والناس
सीन तक तुम्हें नजर आएंगे। और सोने पे सुहागा ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि हाफिज ही नहीं, हाफिज के साथ साथ आलिम भी नजर आते, उनके साथ साथ मुफ्ती भी नजर आते। प्यारे तुम अमानत इस्लाम हो, प्यारे तुम इज्जत इस्लाम हो। आज तुम्हारी अदाओं से, आज तुम्हारी हरकतों की बुनियाद पर गैरों को मौका, अरे गैरों को हम क्यों बोलें? अगर तुम गलत काम घर में करो तो तुम्हारे बाप को मौका मिल जाता, तुम्हारे बड़ों को मौका मिल जाता, गलती करो तो मौका मिलता है या नहीं? तो गैरों का हमें कोई शिकवा नहीं है प्यारे। हमारी अदाएं वो कहाँ चली गई, हमारे वजूद कहाँ चले गए? अरे हम तो जंगल में सोते थे, शेर हमारी खिदमत को आते थे, हम तो बयाबान में रहते थे और जानवरें हमारी इज्जत करते थे, हम तो दुश्मनों के नरते में होते थे। आवाज आती मैं यमनउका मिन्नी, आज कौन बचाएगा तुमको मुझसे? सिर्फ सामने वाला कह देता अल्लाह तो उनका वजूद बिल्कुल मिटने के करीब हो जाता था, ऐसा वजूद होता था हमारा। लेकिन आज तुम 5 वक्त की अजानें सुनते हो, मोबाइल तुम्हारे हाथ में होता है, आज तुम अल्लाह अकबर की सदाएं सुनते हो, गप्पे तुम्हारे कट्टों पर हुआ करती हैं। क्या बात है, फिर तुम शिकवा कर रहे हो? नहीं मुसलमान, तुम्हारी अजमत रफ्ता तुम्हें झिंझोड़ कर कह रही है। ए माए जिनके हाथ में कुरान होना था, मोबाइल है तुम्हारे हाथ में। आज तुम सबसे अजीम तोहफा अपने शौहर से मोबाइल चाह रही हो, अच्छे से अच्छा स्मार्टफोन चाह रही हो। कल की माए वो होती थी, ये शौहर नामदार अगर आपने कुरान की तिलावत की तो मैं तुम्हें प्यार करूंगी, अगर आपने कुरान की अजमतें दी मैं तुम्हें प्यार करूंगी। ए माए क्या हो गया है? फिर तुम आती हो ताबीज लेने के लिए। अरे तुम्हारे दामन में जब तुम बेटी हो तो रहमत का इंतजार था, तुम्हारे वजूद से अजमतें टपकती थी। ए माँ जब तू बीवी बन गई तो अल्लाह पाक ने तुम्हारी वजह से गैर के बेटे को मजाजी खुदा का दर्जा दे दिया है, और जब तुम माँ बनती है तो अल्लाह ने उस बेटे की वजह से अपनी उस जन्नत को, जिस जन्नत के लिए सुबह शाम जिंदगी में दुआ करती हो, रब ने तुम्हारे कदम में डाल दिया है। ऐसा था तुम्हारा वजूद, ऐसी थी तुम्हारी अजमत। तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जामिया तैयबातुर रज़ा कॉन्फ्रेंस, जामिया तैयबातुर रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। ये मदरसा है, इस मदरसा से पैगाम लेकर जाओ, ये कोई डिफिकल्ट नहीं है। अरे तुम तो गद्दों पर बैठते हो, तुम तो गद्दों पर बैठती हो, तुम तो अच्छे अच्छे कालीने बिछाती हो, तुम्हारे घर अच्छे, तुम तो अपार्टमेंट्स में रहती हो। सोचो वो जिनको आज शादी में अली और फातिमा के वसीले के बगैर हमारे निकाह की दुआ की तकमील नहीं होती। ए अल्लाह इस जोड़े को निकाहो, इस जोड़े को अली और फातिमा की तरह मोहब्बत अता फरमा, इस जोड़े को आदम और हव्वा की तरह मोहब्बत अता फरमा। आज भी तुम फिल्म देखती हो, फिल्म एक्टरों की, लेकिन अपने निकाह में तुम्हारे निकाह की महफिल में आज वो दुआ नहीं होती कि फुला और फुला की तरह, फुला और फुला की तरह। अरे जब सक्सेसफुल आज भी तुम्हारी महफिलें निकाह और तुम्हारे वजूद और तुम्हारी फिक्रें तुम्हारी दुआओं में ये कह रही है, तो तुम अपनी अमली जिंदगी में क्यों नहीं ला रही हो अली को? तुम अपनी अमली जिंदगी में क्यों नहीं ला रही हो फातिमा को? क्या तुम वो सिर्फ इसलिए है कि निकाह की महफिल में सिर्फ दुआ करो और फिर जाकर के गप्पे लगाओ, निकाह करो और फिर जाकर के ये करो? मुझसे कभी कभी लोग पूछते हैं वलीमा सुन्नत है, मगर प्यारे सुनाओ, वलीमा जरूर सुन्नत है लेकिन नबी की सुन्नत है, तुम्हारी सुन्नत नहीं है। इसलिए नबी के आईने में वलीमा करना है तो करो, मगर सुन्नत मुस्तहब है। और सुनो, बीवी की नुमाइश करना, बहू की नुमाइश करना ये हराम है। तुम क्यों करते हो ऐसी महफिलों में बीवी, ऐसी महफिलों में बहू को जो जिसमें वीडियो हो, वो कैसी फिक्रें रखते हैं नौशा मियां कि तुम बाद में मिलते हो बीवी से और सब ये फोटो खींचने वाला पहले ही देख ले रहा है, वीडियो लेने वाला पहले ही देख रहा है। इन सारी चीजों को अगर अपने मुआशरे से, अपने घरों से और नबी के नाम पर, कुरान के नाम पर, सुन्नत के नाम पर जो तुम कर रहे हो और कर रही हो, अगर नहीं निकालोगी तो
क्या है? तुम शिकवा गैरों देखो, दुश्मन तो अपनी पूरी तरह दुश्मनी निभा रहे हैं। ए खुदा के दोस्त, ए मुस्तफा के दोस्त, तुम तो कभी दोस्ती का हक अदा करो, तुम तो कभी दोस्ती का हक अदा करो। तुम खुदा के दोस्त हो, तुम तो अल्लाह की जमात हो, तुम तो रसूलुल्लाह की जमात हो। तुम्हारे लिए तो सोचो वो लोग कैसे हैं, वो सहाबा की जमात कैसी है कि अल्लाह अल्लाह एक बार मुस्तफा के हाथ पर बिक गए, नारे लग गए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया, नारे लग गए हैं। क्या बात है, क्या खिलाया मुस्तफा ने, पेट पर पत्थर बांधा हुआ है फिर भी कदमे मुस्तफा पर जानिसारी के लिए तैयार है। या अल्लाह, खाना घर में नहीं है, शहजादी की बेटी आयशा ज़ौजियत में आने को तैयार है। क्या बात है, अरब की सबसे बड़ी इन्वेस्टर, मानो दौलत की सबसे बड़ी अलंबरदार, अरब का बड़ा मर्द उससे बड़ा मालदार नहीं था जितनी बड़ी मालदार हजरत खदीजतुल कुबरा है। लेकिन सुनो, जब निकाह की बात आती है तो उस अजीमुश्शान मुस्तफा की बारगाह में पैगाम निकाह का वो उन्वान देती है। मैं पूछता हूँ खदीजतुल कुबरा, क्या देखा तुमने मुस्तफा में? जवाब मिलेगा, अरे मेरी आंखों से देख, पूरे कौनैन की, सारे जहान की, दो जहां की दौलतें उनके खाली हाथ में नजर आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। आज हमारे बच्चे गल्फ में रहते हैं, माँ कहती है मेरी बेटी को अच्छा खिलाएगा, उसकी तहकीक कुछ नहीं करते। वो बच्चा अय्याशियां कर रहा हो, वो बच्चा आवारगी कर रहा हो, वो बच्चा क्या क्या बाहर कर रहा हो, बाहर की जिंदगी में कितनी गलतियां कर रहा हो, कितनी आवारगी कर रहा हो, कितनी बेहयाई कर रहा हो। बच्चा इंजीनियर है, दे दो, बच्चा डॉक्टर है, दे दो, बच्चा ये है, दे दो। अरे तुमने कभी कभी सोचा खुदा की बारगाह में सबसे बड़ी डिग्री क्या है? सुनो, आज कह रहा हो, डॉक्टरियत डिग्री नहीं है सबसे बड़ी, इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है सबसे बड़ी, प्रोफेसरिंग डिग्री नहीं है सबसे बड़ी। खुदा की बारगाह में सबसे बड़ा डिग्री को है जो उसके कलाम को अपने सीने में महफूज किए हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, तैयबतुर रज़ाक कॉन्फ्रेंस। इंजीनियर 10 किताबें पढ़ लेते हैं, इंजीनियर चीदा मुंतखबात उन्वानात पढ़ करके इंजीनियर बनते हैं, प्रोफेसर मुंतखबात उन्वान पढ़ करके। और सबसे बड़ी बात, सिलेबस बदलते रहते हैं। आज ये कानून बन रहा है, कल वो कानून बनेगा, उसको सिलेबस में दाखिल किया जाए, इसको सिलेबस में दाखिल किया जाए। मैंने परसों फेसबुक पर देखा, मुझे वो माफ करें अगर बड़े आलिम हैं तो, मगर मैं अपना ततफ़ुल पेश करते हुए कह रहा हूँ, हमारे मदरसों में एडिटिंग की गुंजाइश ना लाओ। हम मदरसे वाले मुस्तफा जाने रहमत की तालीम को प्रमोट करने के अहल हैं। इसलिए हमें तहरीयत, हमें उन लोगों की बातें प्रमोट करने की बातें ना करो। हालात के एतबार से असलियत का दाखिला ठीक है, नागुज़ीर है, हम करने को तैयार हैं, लेकिन इस्लाम के निसाब को निकाल कर ऐड करने की बात ना लाओ, क्योंकि ये मदरसे हैं। और आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कसम खुदा की, क्योंकि मैं भी इसी राह का मुसाफिर हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मदरसे और मस्जिद के हवाले से 2 जुमला बोल रहा हूँ। हमें नहीं चाहिए सरकार के स्कीमात, हमें नहीं चाहिए सब्सिडीजियाँ, हमें कौम के उन जिम्मेदारों का 10-10 रुपया चाहिए कि अगर 10 देते तो 100 बन जाए, 100 देते तो 1000 बन जाए। तुम अपने मदरसों को अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, अपनी अतीयात, अपने ताउनात से इतना दे दो कि मैं कहता हूँ 3 चाय नहीं 2 चाय पियो और हाफिज़े कुरान बनाओ। कसम खुदा की, तुम्हारी बरज़खी दुनिया जिसके लिए तुम सुबह शाम कहते हो वक़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह जहन्नम के अज़ाब से बचा, तो कसम खुदा की इन किलों को तुम आबाद करो, हमें खैरों की स्कीमात पर मुनहसिर मत रहने दो, तुम इनको आबाद करो, तुम इनको। अरे मुस्तफा जाने रहमत की तो एक हदीस इतनी अज़ीमुश्शान है कि जिसने एक ईंट भी मस्जिद में लगाई अल्लाह जन्नत में महल अता करेगा। सुभान अल्लाह। अब मैं कभी कभी पढ़ाते हुए इस हदीस को सोचता हूँ, एक ईंट से मस्जिद बनती है क्या? बोलिए, एक ईंट से मस्जिद बनती है? नहीं, मगर वहां मुराद ये है कि अल्लाह के लिए जो भी तुमसे पॉसिबल है, जो भी तुमसे पॉसिबल है तुम दो, जो भी पॉसिबिलिटी तुम्हारे पास है
जो भी एबिलिटी तुम्हारे पास है वो तुम दो। इसलिए हमें मजबूर न करो, इस्लाम के यही सच्चे मुसाफिर हैं। बताओ मेरे मुसलमान भाइयों, आप एक लफ्ज बताओ, आज तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते, बाप क्यों नहीं अजान देता है? आज तुम्हारे घर में कुरान खानियों की जरूरत पड़ती है, तुम सब घर में कुरान क्यों नहीं पढ़ करके दुआ करवाते हो? इन बच्चों की तरफ क्यों माइल होते हो? बताओ, क्या तुम इंतजार कर रहे हो कि ये सब मिसमार कर दिए जाएं, सब ये खत्म हो जाए और ये बच्चे दूसरी दुनिया में चले जाएं? तो कौन अजान देगा, कौन कुरान खानियां होंगी, कौन तुम्हारे निकाह पढ़ाएंगे, कौन कसात करेगा, कौन शरई अदालत में जाएगा? और एक और बात चलते चलते, ये तैयबतुर रज़ा का इल्मी फैजान और उसका पैगाम दे रहा हूं कि सुनो ए मेरी माँ और बहनों, तलाक के मसले के लिए शरई अदालतों में आओ, निकाह के मसले के लिए शरई अदालतों में आओ। अरे ये चाय भी पिलाएंगे और मसले भी बताएंगे। तुम दुनियादार वकीलों के पास जाती हो खुला फाइल करने के लिए, तलाक फाइल करने के लिए, निकाह के प्रोसीजर के लिए, ये सारी चीजों के लिए अरे वो सिर्फ फाइल खोलने और देखने का 10,000 रुपया फीस लेता है। हम तुम्हें चाय भी पिलाएंगे और मसला 2 मिनट में बता देंगे, खुशी खुशी घर लौटोगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये इस्लाम है। अल इस्लाम यबदल इस्लाम करीबन कमा सयऊद। अरे इस्लाम की गुर्बत में वो दौलत है कसम खुदा की कि तुम क्या जानो हमारी इस गुदड़ी में कितना लाल है, नहीं समझ सकते। 50 लाख के कमाने वाले वो सुकून से नहीं सोते हैं जो ये 2000 की इमामत करने वाले सुकून से सोते हैं। हम तुम पर भित्तियां नहीं कस रहे हैं, तुम्हारी अजमत रफ्ता को झंझोड़ रहे हैं, बुला रहे हैं कि तुम कहाँ हो और कहाँ आना चाहिए। आज तुम्हें जरूरत है इस बात की कि तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो। फॉर्मेलिटी के तौर पर मस्जिद मत आओ, तुम देखो, महसूस करो, पूछो। जमात का इंतजाम इसलिए नहीं किया गया है कि तुम नमाज पढ़ो और चले जाओ घर, नहीं, एक दूसरी की खबरगीरी करो। नमाज पढ़ाना अगर मकसूद होता तो घर में कह देता अल्लाह, नहीं, जमात के साथ यही मकसद है ताकि जाओ और देखो कि कोई गरीब, कोई परेशान हाल, कोई भूखा या मुअज्जिन या खतीब या इमाम या कोई भी आपका भाई, यही तो मुसाफा का भी उन्वान है कि इनके चेहरे से टपक जाए। आप नहीं जानते सहाबे किराम ऐसे ही होते, ऐसे ही कि मांगने का तसव्वुर भी नहीं आता, राहों में खड़े हो जाते, मुस्तफा देख लेते और पूछ लेते क्या जुग्राफिया है, क्यों ऐसे चेहरे हैं, फौरन बता देते भूखा हो, फौरन मुस्तफा जाने रहमत दादरसी फरमाते। क्या समझते हो आप? एक दूसरी की हमारे मुआशरे से अखुवत खत्म हो गई, भाईचारगी खत्म हो गई। चेहरा देखकर सलाम करते हो, चेहरा देख करके मुसाफा करते हो। अरे अफसोस ये होता है कि शादी ब्याह का मसला है, मेरी अदालत में ऐसे मसले बहुत आते हैं, इसलिए मैं इल्मी एतबार से या इल्मी मरकज से ये बात कह रहा हूँ कि इस बात को जरा ध्यान से लेकर के जाओ। शादी का पैगाम किसी की तरफ भेजते हैं आप, और अगर वहाँ मतलब कबूल नहीं हुआ या किसी मुसलमान के यहाँ तलाक या खुला वगैरह हो गया, तो अफसोस की बात यह है कि शादी से पहले दोनों जो समधी थे, इतने अच्छे दोस्त थे, बल्कि दोस्त की बुनियाद पर ही वो शादी करें और बोले कि अब दोस्ती को रिश्ते में बदला जाए। और जब तलाक खुला हो गया तो अब सलाम से भी खत्म। अब तो ऐसा लग रहा है कि पक्का चलता फिरता जहन्नमी है, एक दूसरे के लिए ऐसा तसव्वुर करते हैं। ए भाई, अगर तलाक हो भी जाए तो खुदा के वास्ते इस्लाम से निकलने का तसव्वुर मत करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जामिया तैयबतुर रज़ा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम से नहीं निकालो, अखुवत लाओ, भाईचारगी लाओ। ये मदरसे, ये मसाजिद, हम तुम्हें निगेटिव उन्वान नहीं देंगे, तुम्हारी जिम्मेदारी हमने बताई है। नहीं समझोगे तो हमारा क्या है? हम आज हैं, ये उलमा आज हैं। याद रखना, इस्लाम नहीं मिटेगा, मुंतखब जाएंगे, सेलेक्टेड मरेंगे, लेकिन सेलेक्टर खुदा है, मुंतखब खुदा है। इसलिए हम मर जाएंगे, उलमा चले जाएंगे, शहीद हो जाएंगे। अगर तुमने रहते रहते कद्र ना की इनके प्रमोशन के लिए, इनकी तरक्की के लिए, इनके फरोग के लिए,
इन इदारों के आगे बढ़ने के लिए, मसाजिद के तामीर और तरक्की के लिए नहीं की तो क्या होगा। मैं बड़ी अहम मिसाल देता हूँ, मेरे आका तशरीफ ले गए, इस्लाम नहीं रुका। ध्यान दीजिएगा, बहुत कैचेबल जुमला है। अबू बकर सिद्दीक आए, तशरीफ ले गए, इस्लाम नहीं रुका। ध्यान दीजिएगा, तशरीफ ले गए। उमर इब्न खत्ताब का दौर आया, इस्लाम नहीं रुका। आते आते अब आइए, एक जुमला जल्दी से दे रहा हूँ, हुसैन शहीद हो गए। इस्लाम है और सुबह क़यामत तक रहेगा। इसलिए तुम परेशान मत हो, हम चले जाएंगे, कोई जरूरी नहीं, हम खत्म हो जाएंगे, मरने के लिए तो आए ही हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सबको जाना है, मगर मौत ऐसी मरो कि फख्र करे मौत, खब्र रोशन हो, मुस्तफा आए तो नूरे मुहम्मदी का तसव्वुर हो। फेस करने के लिए नहीं, दीदार करने के लिए जाओ। इसलिए बहुत सारे पैगाम जा चुके हैं आपको, अब मैं खत्म करने वाला हूं, बस पूरे का निचोड़ बोल रहा हूं। समझो अपनी मस्जिदों को, जाओ अपनी मस्जिदों को, आपसी झगड़े, आपसी इख्तलाफात को आपस तक ही रहने दो, लेकिन मस्जिद जो जा रहे हो वो इस्लाम की बुनियाद पर जा रहे हो। मदरसे जो आ रहे हो वो ईमान की बुनियाद पर आ रहे हो। इसलिए मस्जिद और मदरसे में चेहरे देखकर नहीं, अपनी नीयत देख करके आओ। अपनी नीयत और इखलास और लिल्लाहियत के साथ हाजिर हो तो तुम्हारा आना भी एक एक कदम पर बाइस सवाब होगा। और जो भी तुम करोगे ना, दामे दिरमे सुखने, कसम खुदा की, उसका फौरन देखोगे आप। दुनिया में भी तुम्हारी औलाद भी बढ़ेगी, फलेगी फूलेगी इंशाअल्लाह, और तुम्हारी आखिरत भी, और आखिरत से पहले तुम्हारी बरज़खी दुनिया भी, कब्र भी मुनव्वर होंगे। ऐसे तसव्वुर में अपने आप को प्रमोट करो, अपनी ज़िंदगी को ऐसा लाओ। और एक बात और ख़ास तौर से, ये जो कॉलेज और स्कूल में बच्चे और बच्चियाँ पढ़ रही है ना भाइयों, इन बच्चियों की, ये देखिए, आप बाप माँ बुरे नहीं होते। ये जुमला बोलना हमारे पर भरोसा नहीं है क्या? ये जुमला बोलने की जरूरत नहीं है। तहकीक करो, क्योंकि हम लोग भी बाप माँ हैं, हम लोग भी बाप माँ हैं, हम लोग भी वालिदैन हैं, हम लोग भी पेरेंट्स हैं। तहकीक करो, उनके बैग्स चेक करो, उनके मोबाइल अगर देते हो तो मोबाइल चेक करो। ये उनका भला है और तेरी इज्जत है, ध्यान रखना, उनका भला है और तेरी इज्जत है। ये जुमला नहीं, भरोसा नहीं, भरोसा नहीं, रहने दो भरोसा अपनी जगह पर। निगरानी करो, औलाद को टाइम दो, औलाद के सामने मोबाइल इस्तेमाल मत करो, टाइम दो उनको, अपने पुरखों की बातें समझाओ। आपके ऊपर वाले कौन थे? तुम्हारी अस्ल भी मुसलमान और तुम भी मुसलमान। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।